The age was Satyug. The demon was Mahishasur. But the story is same old. Mahishasur came to power, and discrimination, exploitation, plunder, that became the state of the world. And then, when each and every person on this earth was crying, was calling for help, at that point in time, उस समय देवों ने अपनी शक्तियों को सम्मिलित किया. They united their Shakti, and at that point in time, 18 armed Divine Mother took form. And Divine Mother then went ahead and killed Mahishasur. 9 दिन और 9 रातों तक चला ये युद्ध, और अंत में महिषासुर का अंत हुआ. And once again, truth was victorious over deceit. सत्य की असत्य पर जीत हो गई. Light won over darkness. Victory was all around, and peace was that dawned on the earth. Good evening, dear brothers and sisters. ये कहानी हमने बहुत बार सुनी है, but I have come here with a question. आपने जो महिषासुर मर्दिनी के अभी ये बैले देखा, the story behind that is just what I told you. But the big question is, हर साल, every year we are celebrating the victory of truth over deceit, the victory of peace. But dear brothers and sisters, think over it. Tell me, which victory are we celebrating? The victory of corruption over discrimination? Tell me, are we celebrating the victory of corruption over development? Are we celebrating the victory of discrimination over equality? Are we celebrating the victory of war over peace? Brothers and sisters, आज हमारे समाज की यही हालत है. किस विक्ट्री को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, हमने कभी नहीं सोचा. We've never thought about this. Which victory are we celebrating? उस टाइम पर तो माँ ने महिषासुर का एंड किया था, उसका वध किया था, and everyone rejoiced. पीस हो गया, तब सबने खुशियां मनाई, नवरात्रे सेलिब्रेट किए, विजयदशमी सेलिब्रेट की. पर हम क्यों ये सेलिब्रेट कर रहे हैं? We don't know, and we don't want to know also. आप में से बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे, what is the use of knowing this? But I am going to ask you 3 questions. क्या आप चाहते हो कि आपकी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स एंड हो जाए? Tell me yes or no. क्या आप चाहते हो कि इस नेशन की सारी प्रॉब्लम्स एंड हो जाए? Yes or no. क्या आप चाहते हो कि आपकी लाइफ सक्सेसफुल हो जाए? Yes or no. क्या आप चाहते हो कि हमारे इस पूरे वर्ल्ड में पीस आ जाए, हमारी लाइफ पीसफुल हो जाए? Yes is the answer. We all want that to happen. But dear brothers and sisters, अगर आप चाहते हो तो spare out few moments and now listen to what I'm going to tell you. Because जिन acts को, जिन festivals को हम orthodox और या फिर superstitions या blind faith की वजह से celebrate करते हैं, those have only become a source of holiday for us. They have great relevance hidden for us. हम जानते नहीं हैं. We are ignorant about that. That is why our lives are in problem. कौन है ये महिषासुर? आज हमें जानना होगा. Mahishasur, as the name itself is very symbolic, made up of 2 words, Mahish और असुर. महिष, अगर आप संस्कृत की डिक्शनरी उठा के देखेंगे तो you will come to know कि महिष कौन है. A buffalo is called महिष in संस्कृत. एक भैंसे को महिष बोलते हैं. और एक बफलो का कैरेक्टरिस्टिक क्या है? बाहर से आप देखोगे बहुत पावरफुल है, बट वो जहां पर भी जाता है, अगर वो किसी पॉन्ड में जाता है तो वहां पे केओस क्रिएट कर देता है.
ऐसा ही है महिष जो chaos क्रिएट करे. So it represents a personality which creates chaos. और असुर again the word tells its meaning. जो सुर में नहीं है वो है असुर. जो सुर में नहीं है, सुर में होना क्या है फ्रेंड्स? एक साज सुर में कब होता है? जब वो ट्यून्ड होता है और उसमें से जो स्वर निकलते हैं वो 7 सुरों में बंधे होते हैं. सारे गामा पा ये निकलता है उसमें से. लाइकवाइज एक ह्यूमन बीइंग सुर में कब होता है? जब उसके अंदर से 7 नोबल ट्रूथ्स या 7 क्वालिटीज ऑफ लव, कंपैशन, फ्रेटर्निटी ये जब अराइज होते हैं, सेंसिटिविटी जब अराइज होते हैं तब वो सुर में होता है. पर ऑन द अदर हैंड एंगर, डिसीट, हेट्रेड, कॉन्फ्लिक्ट जहां पर ये ट्रेड्स होते हैं, ग्रीड, कंपटीशन, वो सुर में नहीं है. और आज महिषासुर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? महिषासुर रिप्रेजेंट्स ईच एंड एवरी पर्सनालिटी which is not in order, which is not in equilibrium, जिसके अंदर anger, deceit, hatred, competition, greed ये सब पनप रहा है. Each and every person with such a personality is a Mahishasur. Look around, देखो जब आप सड़क पर जा रहे होते हो और अपनी लग्जरी कार में से एक व्यक्ति उतरकर सड़क के बीचों बीच दूसरे पर चिल्लाता है, कौन है वो व्यक्ति? Just in a fit of anger, he's lost his temper and he's barking like a dog. Who's he? देखो उन लोगों के चेहरों को देखो, देखने में बहुत सिंपल लगते हैं, पर जिन्होंने दामिनी, रेप जैसा हिनियस क्राइम किया वो कौन है? देखो उन लोगों को देखो जो अपनी वाइफ्स को और अपनी गर्लफ्रेंड्स को मारने से पहले उनकी आंख एक बार भी नहीं झपकती. कौन है वो? देखो उन राजनेताओं को देखो, उन पॉलिटिशियंस को देखो जो हमारे सामने आकर, जो पब्लिक के सामने आकर हाथ तो जोड़ते हैं लेकिन पीछे क्या करते हैं? देश के सेवक कहलाते हैं अपने आप को और इस देश की जनता को लूट लेते हैं. कौन है वो सब? Who are all these? ये सब आज के महिषासुर हैं. फ्रेंड्स, उस समय तो केवल एक महिषासुर था, ओनली वन. बट टुडे जहां पर भी देखोगे महिषासुर ही देखने को मिलेगा. हर जगह महिषासुर है और एक सबसे बड़ा महिषासुर हम सबके अंदर बैठा है. You can analyze it for yourself. When you get angry, when you do things which you don't want to do but you get into them, when your wishes are not fulfilled and out of frustration you commit wrong things, that time the Mahishasur sitting inside you is expressed. वो बाहर आ जाता है और उस महिषासुर के होने के कारण आज हमारे समाज की एक सेक्टर, एक डिपार्टमेंट उसके केओस केओस है. आप किसी भी सेक्टर को उठा के देख लीजिए, इकोनॉमिक्स को देख लीजिए, पॉलिटिक्स को देख लीजिए, सोसाइटी को देख लीजिए, हर सेक्टर में आपको एक केओस दिखेगा. क्यों? क्योंकि इन सभी सेक्टर्स में जो राज कर रहे हैं वो कौन है? वो महिषासुर है आज 21st सेंचुरी के. डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, जिस पीस को हम चाहते हैं, जिस विक्ट्री को हम चाहते हैं, हम तब तक नहीं पा सकते जब तक ये महिषासुर हमारे समाज में है, जब तक ये महिषासुर हमारे अंदर है. टुडे वी नीड अ रेवोल्यूशन. Today we need a revolution, not only to change one particular sector of the society, not to change the economics, not to change the politics, not to change the society. Today we need a revolution which can change the entire scenario, a revolution at the core of which lies the killing of this inner Mahishasur. और आप हिस्ट्री को उठाकर देखिए, हिस्ट्री के पन्ने पलट कर देखिए, जब भी ऐसी रेवोल्यूशन आई तो वो कहाँ से आई? ये रेवोल्यूशन एक स्पिरिचुअल रेवोल्यूशन ही हो सकती है. आई एम नॉट सेइंग दिस बिकॉज आई एम वेयरिंग दिस ऑरेंज रोब. नो, you can check the facts in the history. Whenever things were to change completely, चाहे वो त्रेता युग हो, रावण का राज हो, या फिर वो कंस का राज हो, या फिर वो टाइम हो जब
हमारे भारत ने आज़ादी को प्राप्त किया, हर बार एक स्पिरिचुअल रेवोल्यूशन की धरातल पर ही ये चेंज आया। Because it is only the spiritual revolution which has the ability to slay the inner Mahishasur, अंदर के महिषासुर को खत्म कर सकता है। और आज माँ की ये जो लीला, ये जो डिवाइन प्ले आपने देखा, it's telling us that उन्होंने कैसे महिषासुर को खत्म किया। जब सुरों ने, देवताओं ने, the positive people, the positivity, when it came together, when it got united, तब Mahishasur was killed. Then a Shakti was produced outside and that Mahishasur was killed. But आज कहाँ पर है positivity? Each heart is thriving with negative thoughts. Positivity थी विवेकानंद में, positivity थी चंद्रगुप्त मौर्य में, positivity थी श्री अरबिंदो में, positivity थी भगत सिंह में। उन्होंने अपने अंदर की शक्ति को पहचाना था, इसलिए though they were standing alone but they were all positive and a day came when the entire nation stood with them. Dear brothers and sisters, आज अगर हम इस समाज को बदलना चाहते हैं, आज अगर हम अपनी लाइफ्स को चेंज करना चाहते हैं, तो then we need to realize that positivity in us. We need to realize the Shakti within us, and this is the first step of the threefold strategy which the Divine Mother is giving us. क्या है पहला step? Realize the Shakti within you. Yes, brothers and sisters, Shakti हम सब में ही है. Only thing is, we are not aware of it. You all have immense power and the power of change rests in your hand, क्योंकि शक्ति आप सबके अंदर है। बट हमारी सिचुएशन कैसी है? शक्ति हमारे अंदर है पर हमने आंखें बंद की हुई है, इसलिए we see darkness all around. We know the power of our mind, we know the power of our intellect that we have exercised, but today we have reached a stage जहाँ पर माइंड और इंटेलेक्ट से अब बियॉन्ड जाना है, क्योंकि माइंड और इंटेलेक्ट से बियॉन्ड हमारे अंदर एक सटल सेंटर है, हमारी कॉन्शियसनेस। And Ma Shakti herself says, I reside in all of you as Chetna, I reside in all of you as consciousness. And today the need of the hour is to realize that consciousness within. क्योंकि विवेकानंद कब विवेकानंद बने? जब रामकृष्ण परमहंस ने उनके अंदर की शक्ति को जागृत किया। यूथ आइकॉन है हमारे, लेकिन हम नहीं जानते वो कैसे बने। There is a Vivekanand in every one of you. Only thing is you need to go inside yourself. Ram Krishna Paramhans gave that eternal science of self-realization, Brahma Gyan, to Vivekanand, and Vivekanand realized the Shakti within himself. छत्रपति शिवाजी को भी समर्थ गुरु रामदास ने उनके अंदर उस शक्ति का साक्षात्कार करवाया था, आत्मा से मिलवाया था, and that's how वो आत्मबल उनके अंदर आया and he brought a change in the society. Today we need that. ये first step है, पर इसके बाद शक्ति तो महिषासुर में भी थी, पर महिषासुर ने उस शक्ति को किस में लगाया? डिस्ट्रक्शन में लगाया। After having the Shakti, you need to have the second step in your life. That second step is have a goal which is higher and the highest. वो goal क्या है? Goal is not your own lives. Today our society is degrading. Why? Because हर व्यक्ति अपने सेल्फ सेंटर्ड गोल्स में एंटैंगल्ड है। एवरीवन वांट्स पीस बट वी वांट इट फॉर आवर ओन सेल्फ। पर अगर हम एक अकेले अपनी लाइफ में पीस ले आएंगे तो भी ये सोसाइटी केओस में रहेगी, क्योंकि हम सेल्फ सेंटर्ड है। एक गोल जो हमारे सामने हमारी उस एंथुजियाज्म को बढ़ाए, वो गोल कोई साधारण नहीं हो सकता। वो गोल इस विश्व में शांति लाना हो सकता है, और ये कब रियलाइज होता है? जब हमारे अंदर वो शक्ति जागृत हो जाती है। सो इफ यू हैव अ हायर गोल इन फ्रंट ऑफ यू, देन दैट विल ऑटोमेटिकली जनरेट एंथुजियाज्म इन यू एंड यू विल वॉक अहेड
क्रॉसिंग ऑल द ऑब्स्टिकल्स एंड नथिंग इज गोइंग टू स्टॉप यू। ऐसा ही हमारे जो हमारे यूथ आइकन्स हुए हैं, जो स्वामी विवेकानंद थे, छत्रपति शिवाजी थे, इन्होंने अपने जीवन में अपने गोल से ऊपर उठ के, पर्सनल गोल से ऊपर उठ के उस नेशन को सुधारने का गोल लिया था। भगत सिंह could walk smiling through that jail. He could go and stand there on the pedestal जहाँ पे उन्हें फांसी दी जा रही थी। क्यों? इतनी आसानी से कैसे हो गया? क्योंकि he had love for his goal. He loved his nation and he desperately wanted कि जो उनका लक्ष्य है वो उसे प्राप्त कर लें। आज हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम जानते हैं कि हमारे अंदर शक्ति है, हम चेंज ला सकते हैं, पर हमारी लाइफ में कोई डायरेक्शन नहीं, कोई गोल नहीं। सो वी नीड टू हैव अ गोल विच इज हाई एंड हाईएस्ट so that we can achieve, and the goal is right in front of us. This entire world is waiting for us to awaken. ये हमारा देश आज हमारा इंतजार कर रहा है कि हमारे अंदर की शक्ति जागृत हो और हम इस समाज को बदल दिखाएं। And when we will have youth who's awakened, when we will have women who have awakened the Shakti within them, माँ शक्ति हर साल आकर यही कहती है, उठो, जागो और अपनी शक्ति को जागृत करके इस समाज में पनपती हुई बुराइयों को खत्म करो। But we don't listen to it. We don't know about it. But once we have done that, then we need a unified team, a group outside. And when such positive people will unite, they will form a group, then the society is going to change. Because dear brothers and sisters, unity has power. Unity can bring order. Unity has strength. Unity नहीं तो हमारे ये समाज जो बिखरा हुआ है, इसमें कोई भी शांति से नहीं रह सकता। प्रॉब्लम्स बढ़ती ही जाएंगी, क्योंकि जहाँ पर यूनिटी नहीं वहाँ पर डिस्ट्रक्शन और डिसऑर्डर रहता है। इसे एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। मैटर हैज़ 3 स्टेट्स, गैसेस, लिक्विड्स और सॉलिड्स। अगर आप गैसेस की मॉलिक्यूलर कॉन्स्टिट्यूशन को देखेंगे तो इन गैसेस द मॉलिक्यूल्स आर फार अपार्ट, उनके बीच में कोई अट्रैक्शन नहीं है, इसलिए गैसेस का कोई फिक्स्ड फ्रेम नहीं होता, कोई फॉर्म नहीं होता, एंड दे डोंट हैव मास, यू कांट सी देम। लाइकवाइज अगर आप लिक्विड्स को देखेंगे तो उनके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में मॉलिक्यूल्स पास हैं, पर फिर भी आप उन्हें किसी भी एक पर्टिकुलर फ्लूइड में, किसी भी एक पर्टिकुलर बर्तन में रखेंगे तो दे विल टेक दैट शेप एंड दे विल फ्लो अवे। You can see them, they have a mass, but yet they have fluidity. And the third state is solids. सॉलिड्स की मॉलिक्यूलर कॉम्पोजिशन को देखेंगे तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से वेल कनेक्टेड है, दे आर अलाइंड टुगेदर। अगर आज हम चाहते हैं कि हमारा समाज, हमारा ये वर्ल्ड एट पीस हो, एक स्ट्रक्चर को प्राप्त करे, तो वी द एंटिटीज ऑफ दिस वर्ल्ड विल हैव टू हैव एन अलाइनमेंट लाइक सॉलिड्स। सॉलिड्स की तरह जब हम एक दूसरे से बॉडी, माइंड और इंटेलेक्ट के लेवल पर नहीं, जब सोल के लेवल पर कनेक्ट हो जाएंगे, जब वो शक्ति के लेवल पे कनेक्ट हो जाएंगे, देन आवर वर्ल्ड इज गोइंग टू टेक अ good shape, a shape wherein we all will flourish. ये है unity gives order, unity gives strength to the structure. अगर आप Great Barrier Reef को देखें, if you are a science student you would be knowing about it. Great Barrier Reef, it is made up of small primitive organisms. Anthozoa के corals हैं जिन्होंने इसे मिलके बनाया है, पर इस ग्रेट बैरियर रीफ के पास जो आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी की शिप्स हैं वो भी जाने से डरती हैं। क्यों? क्योंकि इट वाज देयर यूनिटी विच हैज़ ब्रॉट देम टुगेदर, और उन्होंने अपने प्रोटेक्टिव आर्मर के रूप में ये कैल्शियम कार्बोनेट सिक्रीट किया, एंड ईयर्स जब ये कलेक्ट होता गया तो एक ऐसी समुद्री चट्टान बन गई जो शिप्स को भी थ्रेटन करती है। This is the power of unity. And third, unity makes the task simple.
हर व्यक्ति एक यूनिफाइड फोर्स जब बनता है तो हर इंडिविजुअल सिंपल तरीके से काम करता है, अपनी अपनी कैपेसिटी से काम करता है, बट जो रिजल्ट्स मिलते हैं, जो आउटपुट मिलता है, वो मैनी फोल्ड होता है। इसके लिए भी एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल है, सारस क्रेन के बारे में आपने सुना होगा, गीज। इट इज़ ओनली एबल टू टेक शॉर्ट फ्लाइट्स, छोटी फ्लाइट्स ले सकती है, 10 किलोमीटर्स भी दूर नहीं जा सकती। बट ड्यूरिंग द माइग्रेटरी पीरियड दे ऑल कलेक्ट टुगेदर अंडर द लीडरशिप ऑफ वन लीडर, और उस टाइम पर ये हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ माइल्स तय करके अपने रिप्रोडक्टिव ग्राउंड में पहुंच जाती है। कैसे? इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ यूनिटी। यू नो व्हाट, इफ a geese has to fly alone, it can only cover 1 kilometer, but when they fly together, the output which they achieve is 70 kilometer. Ratio is 1:70. Such is the strength of unity. Simple तरीके से उन्होंने मोशन की, but जब वो उड़े तो ऐसा एरोडायनेमिक फोर्स हुआ कि उसकी वजह से they could cover miles and miles. Dear brothers and sisters, today if we want to change our society, these are the 3 steps we need to follow. जब देवों ने, जब पॉजिटिविटी रियलाइज होगी, जब हम अपनी शक्ति को जानेंगे, उसके बाद when we will get collected under one leadership, then this world is going to change. Now I have told you the strategy. आप सबको ये 3-fold strategy समझ आ गई? Let me repeat the steps. First, realize the potential within you. Have a higher goal and then unite together. Once you unite together, then this world is going to change. The ball is in your court, dear friends. You have to bring about the change. If not today, then you will never have a second chance. This is the message which Ma Mahishasur Mardini gives. Thank you so much.